See, in HRM definition, we were doing individual goals, organizational goals, and societal goals, right? Right? Individual goals complete हो चुका है. We are done with organizational goals. Okay, and now we are doing societal goals. Do you think that a business organization has some societal obligations also? Societal obligations मतलब कि सोसाइटी के प्रति कोई दायित्व है बिजनेस का? Yes, ma'am. क्यों है और किस तरीके का है, बताइए. क्यों? मैम सोसाइटी से ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा तो लॉन्ग टाइम नहीं चल पाएगा बिजनेस. हाँ चलो ठीक है, एक ये है. दूसरा, क्यों होना चाहिए सोसाइटल ऑब्लिगेशन, ये बताओ मुस्कान. No idea? See, this is why I asked you to come with a little bit of CSR information, क्योंकि ये societal goals से linked होता है. Anyway, I'll tell you what is societal goals. See, now society, a business organization always functions in a society, right? It is taking all the factors of production from society. Then it is taking the other accessory things, like it is taking electricity from society, it is taking water from society, it is taking labor from society, and then it generates profit, right? उसके बाद वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं. तो उनका भी दायित्व है कि वो when you're getting everything from society, you should be able to, and this is your moral practice, this should be your moral obligation to give it back to society. कि आप समाज को वापस दें. तो वापस किस तरीके से देंगे? आप जो काम कर रहे हैं उसमें एथिकली राइट होकर के दे सकते हैं आप, राइट? कि आप जो काम कर रहे हैं, अगर जैसे कि हम ये कहते हैं कि देशभक्ति क्या है, तो देशभक्ति का मतलब सिर्फ बॉर्डर पे जाकर के लड़ना तो नहीं है. जो इंडिया की आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में सोल्जर्स हैं, क्या सिर्फ वो देशभक्त हैं? No. If you have taken up a job like a doctor, if you have taken up a job like an engineer, if you're a student right now, if you are obeying all your fundamental duties, you're also fulfilling your obligations, right? इसी तरीके से जब societal obligation की बात होती है, तो जो business organizations हैं, वो business organization जब अपनी responsibility ध्यान से निभाते हैं, okay, and they are fair enough and they are ethical enough in that, then they are known to be doing justice to their societal obligations. जैसे just and fair pricing. इसका क्या मतलब हुआ? fair pricing का क्या मतलब हुआ? फेयर प्राइसिंग का क्या मतलब हुआ? फेयर प्राइस पे तुम कोई सामान खरीदे, उसका क्या मतलब हुआ? सही दाम पे, यही होगा ना, सही दाम पे. So a business organization, ठीक है, everybody knows that business organization is there to earn profit, लेकिन उस प्रॉफिट के कमाने के इंटेंशन के बावजूद आपकी प्राइसिंग जस्ट एंड फेयर होनी चाहिए, ठीक है? So that it could be affordable by the people. This is one thing that you're giving to society. Second thing, the quality of your goods and services should be good. If you're giving it to society, you should make sure that the quality of goods and services should be good. Not that suppose you are in a business of food. You are in a business of food और आप नकली सामान बेच रहे हैं, adulterated सामान बेच रहे हैं. You are not, then you will be called to be not fulfilling your societal obligations. समझ में आई बात? अभी दिवाली आई है, दिवाली का टाइम आ रहा है, अभी न्यूज में आए दिन तुमको ये सुनने को आएगा, एडल्ट्रेशन वाला चीज, घी में मिलावट, मेवा में मिलावट. You're getting my point? So as a business organization, you should be aware of the fact that this is one thing that you have of societal obligation.
कि सोसाइटी को आप गुड फेयर प्राइसिंग में देंगे, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज बेटर होनी चाहिए। थर्ड थिंग, हैव यू एवर नोटिस्ड कि IT कंपनीज का, स्पेशली IT कंपनीज, बिकॉज दिस इज टू मच इन न्यूज, ओके, सो you're doing one thing, see, जब आप IT कंपनीज को देखेंगे, जब आप बिजनेस का न्यूज सुनेंगे, then you will come to know कि IT कंपनीज अपना लिस्ट जनरेट करती है कि इस साल उसने अपना कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। आपने देखा है ये कि पर्टिकुलर कंपनी कितना रिक्रूटमेंट कर रही है इस साल, या कितना करने वाली है अगले क्वार्टर में, इस चीज का वो रिपोर्ट देती है। दिस इज ऑल्सो अ सोसाइटल ऑब्लिगेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन कि आप लेबर समाज से लेते हैं और अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी आपकी सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आई बात? सो फ्रॉम टाइम एंड अगेन यू शुड बी एबल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। इसीलिए जब रिक्रूटमेंट पढ़ाएंगे तब तुम लोग को बताएंगे कि इंटरनल रिक्रूटमेंट के साथ साथ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉम्प्लायंस। ठीक है, तो उस वक्त हम रिक्रूटमेंट पढ़ाते समय तुमको पढ़ाएंगे। एज ऑफ नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, जस्ट एंड इक्विटेबल प्राइसिंग देना, या गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना इज योर सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ अब एक टॉपिक हम लोग डील करते हैं। ये वर्ड आई डोंट नो कि यू हैव हर्ड इट और नॉट। आपने सुना है कि नहीं कि CSR क्या होता है? ओके, CSR कौन लोग जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज CSR? संदीप, एनी आइडिया? Ma'am, cash reserve ratio. Cash reserve ratio is not CSR, that is CRR. Cash reserve ratio. I'm asking CSR. अच्छा ठीक है, कोई आइडिया नहीं है। I got this. आपको अजीत का याद है? कुरड़िया में एक बच्चा था। CSR is corporate social responsibility. इसका इन्फोसिस में उसका हो गया। Okay? What is CSR? CSR is corporate social responsibility. लिख लीजिए कॉपी में। CSR आप पढ़ेंगे आगे भी, आप बीबीए में आपको आगे कहीं ना कहीं जरूर पढ़ना होगा इसको एनवायरमेंट में। CSR is corporate social responsibility. इसका मतलब होता है, देखो इसका रूल ये है कि जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने 3 साल के नेट प्रॉफिट का 2% सोशल वेलफेयर के तौर पे, सोशल एक्टिविटी के तौर पे खर्च करती है। 2% तक वो मैंडेटरी है कि आपको खर्च करना है। उसके ऊपर आपकी कैपेसिटी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मन, ऑर्गेनाइजेशंस का मन कि देखो जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका CSR 10% भी हो जाता है, किसी का 11% भी हो जाता है। CSR का एग्जाम्पल्स, अब CSR जानने के बाद कुछ आइडिया आ रहा है कि क्या होता है? जो बिजनेस हाउसेस होते हैं, जो कॉर्पोरेट हाउस होता है, दे आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड 2% of their net profit minimum for societal welfare as a part of their responsibility towards society. उसको कहते हैं CSR। जैसे मैम जैसे कॉर्पोरेट क्या है, अस्पताल बनाते हैं, तुम्हारी आवाज वेट तुम्हारी आवाज सही से नहीं आई, रिपीट फिर से बोलो। जैसे मैम कोई जो दुनिया है या अस्पताल वगैरह बनाती है तो सोसाइटी वो भी इसके ना। CSR, Sandeep, again your voice was breaking. I'll ask this to you in class, but as of now
एक बार फिर से ट्राई करो, मे बी दिस टाइम द वॉइस इज क्लियर. बोलो. अभी बोलो संदीप. कंपनियां जो हॉस्पिटल हाँ, वेरी बनाती है, गुड. कॉलेजेस बनाती है और चैरिटी करती है, वो चैरिटी इसके अंदर करती है, वो इसमें आता है. बिल्कुल ये आता है. वेरी गुड. दिस इज व्हाई आई हर्ड थर्ड टाइम फ्रॉम यू. सीएसआर बताने के बाद तो आपको समझ में आना चाहिए कि सीएसआर क्या होता है. जैसे कि हम तुमको बताते हैं आईजीआईएमएस. आप लोग अंदर गए हैं? आईजीआईएमएस में कभी गए होंगे? अगर ध्यान नहीं दिए हैं तो अब जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है. When you get inside IGIMS, so on the right side of that emergency thing, emergency building, you will find a guest house. You know that guest house is made by Power Grid. It's an organization, Power Grid. उसने बनाया है ये guest house, and it has given this guest house. It has built this guest house, and it has given this guest house, handed it over to IGIMS for using it like a CSR activity. ठीक है? The hospital is using it for its own purpose, and since hospitals and places like these, they operate for a noble cause. More examples from CSR activity. For example, the organizations, when they are donating woolen clothes, quilt, and things like that in old age home or to people in any nearby village, या फिर स्कूल में, गवर्नमेंट के स्कूल में बेंच डेस्क डोनेट करना, उनको स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, या प्लेग्राउंड बनवा देना. ठीक है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनवा देना उस एरिया में, स्कूल्स खोल देना. these are all the examples of CSR, various CSR activities covered by the organizations. Big organizations, since they have more capacity, they contribute more to CSR activity, and small organizations. हाँ, वो record है.